हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका फॉर नीट पीजी 2025 का डिस्कशन करेंगे। द पैरामीटर्स व्हाट वी हैव इंक्लूडेड इन सिलेक्टिंग द कॉलेज इज purely hospital and patient flow. We have given the priority to the hospital, any of the medical colleges hospital and the patient flow. We have not given the priority to the college infrastructure. Friends, try to understand one thing, whenever you are trying to pursue MDMS in Karnataka or for that instance any of the medical college, then you should always give the first priority to the hospital and its patient flow. Infrastructure plays no role, absolutely no role in MDMS education. See, the patient flow is the most important thing, because right from the day one you will be posted as JR in any of the medical college what you select. देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका happens to be the most demanding state as far as MDMS is concerned, and Karnataka is that state which has the maximum amount of MDMS, maximum number of MDMS seats throughout the country. देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका में a brief introduction we will give of the types of the seats. We'll keep it in short. See, there are three types of seats. Basically, open category, that is the fee structure for that is 13,80,000 and it is open for all, open for everyone. So generally the fees is 13,80,000 for this category. The other two types of category are management quota, that is called the others quota, and NRI quota. In this management and NRI quota, basically there are 20% of the seats. Out of this, 5% of the seats are under management quota and 15% of the seats are there under NRI category up till the percentile is not reduced. Once the percentile is reduced, this 15% of NRI category seats will get converted to management quota. So basically you don't require NRI in Karnataka. Well, coming to the best medical colleges, first position we would be giving for the two colleges. The first one is Kempegowda and the another one is JJM Medical College Davangere. Friends, these two are iconic colleges. Kempegowda Medical College is located in proper Bangalore city. It was established in year 1981, and JJM Medical College Davangere is located in Davangere, which happens to be 300 kilometers from Bangalore, and this medical college was established in year 1965. These two are iconic medical colleges. Friends, if we talk about the patient flow of these two medical colleges, Kempegowda roughly has the patient flow of around 2,500 to 2,600 per day, and the same is the case with JJM Davangere. JJM Davangere also has around 2,500 to 2,600 patients per day. Friend, JJM Davangere, I mean the Bapuji Medical College, the medical hospital, Bapuji Medical Hospital happens to be the government hospital. Apart from this, it has another two medical hospitals which are known as Chigateri CG Hospital, which is specially dedicated for pediatrics, and the third one is Women and Children, which is specially dedicated for gynecology and pediatrics. So this is the level of this hospital. I mean, Kempegowda, see, Kempegowda is one of the topmost medical colleges in Karnataka, friends. It is located in proper Bangalore city, and these two colleges, if you compare, they are neck to neck for these two colleges. If we talk about the cutoff of these two medical colleges, then under the open category, radiology finishes by around 2,500 to 2,600 all India rank under 13,80,000 rupees fee structure. And if we talk about the management quota, see, the management quota, the cutoff goes till the range of around 1,10,000, because the fees is on the higher side for management quota as well as the NRI quota. So these two colleges we would give it number one, definitely number one. The second best medical college what we can consider is Father Muller Mangalore. This is one of the best college. This is also a very good college. It was established in year 1999, but the thing here is the Father Muller Hospital, the Father Muller Medical Hospital was established in year 1880. It is a pretty old hospital, and the best part in this medical college is the patient flow, the very excellent patient flow. The patient flow is in the tune of 2,200 to 2,300. Very excellent patient flow. This is the medical college which got the permission. The college was established in 99, and before the establishment of the college, it got the permission to run MD General Medicine in 1992 itself. So just imagine what would be the quality of this medical hospital. Excellent, very excellent. Name the department, all the department, चाहे वो radiology हो, derma हो, pedia हो, gynae हो, ortho, very excellent patient flow in all the departments. बहुत ही अच्छा इसका patient flow रहता है. तो इसको हम लोग second position
पोजीशन पे रैंक करते हैं फ्रेंड्स। देखिए थर्ड पोजीशन पे वी वुड गिव इट टू एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज आइकॉनिक मेडिकल कॉलेज फ्रेंड्स, प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। देखिए थर्ड पोजीशन पे हमने इसीलिए इसको रखा है क्योंकि ये स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी फीस जो है वो इवन की ओपन कैटेगरी में थोड़ी हायर साइड पे रहती है बिकॉज इट इज अ स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो रमैया मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है फ्रेंड्स, वेरी एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो, और काफी 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 बड़ा हॉस्पिटल है इसका, जो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है एमएस रमैया। जो इसके बाद हम लोग रखते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पोजीशन पे वैदेही मेडिकल कॉलेज। वैदेही मेडिकल कॉलेज इज आल्सो वेरी गुड मेडिकल कॉलेज, वेरी नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो इस मेडिकल कॉलेज का भी है। 2001 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है, और इसका जो मेन यूएसपी है वो पेशेंट फ्लो है फ्रेंड्स। देखिए वैदेही के पास जो अपना एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी है, वेल दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट द पेशेंट फ्लो ऑफ वैदेही मेडिकल कॉलेज इज वेरी वेरी नाइस। देखिए ये जो स्टार्टिंग के जो 4 मेडिकल कॉलेजेस है, इन लोग की अगर इनटेक की भी हम लोग बात करें तो जो टॉप के ब्रांचेस हैं, जो टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस है, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गायनी, ऑर्थो, सर्जरी, तो इसमें इन लोग का इनटेक भी काफी अच्छा इनटेक रहता है। जैसे कि जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी का अगर रेडियोलॉजी में बात करें तो टोटल 8 सीट की इनटेक है इसमें, आई मीन अंडर मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा। देखिए मैनेजमेंट कोटा एक बेसिकली क्या है, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू यू कि इवन यू आर ऑन द लोअर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट, then you have a handsome amount of opportunity to get the allotment। तो 8 सीट मैनेजमेंट कोटा में इसके पास रहती है। फादर मुलर का इंटेक कम है, फादर मुलर के सारे ब्रांचेस में इंटेक कम है। वैदेही के पास बहुत अच्छा इंटेक है, 7 सीट्स है उसके पास जनरल मेडिसिन में, और करीब 6 सीट है उसके पास एमडीआरडी रेडियोलॉजी में। तो ये देखिए ओपन कैटेगरी की जो सीट्स होती है, ओपन कैटेगरी में बेसिकली थ्रू आउट कर्नाटका में सीट्स कम रहती हैं। अगर ओपन कैटेगरी की इन सारे कॉलेजेस की बात करें तो रेडियो डर्मा मेडिसिन में एक सीट की इनटेक रहती है। तो ये चीज रहता है। एमडीआरडी रेडियोलॉजी की अगर टोटल कर्नाटका की सीट्स की हम लोग बात करें ओपन कैटेगरी में 13,80,000 वाले, तो केवल 15 सीट का इनटेक है, बिकॉज द सीट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ सीटें ओपन कैटेगरी में रहती है, कुछ जीएम कैटेगरी में रहती हैं, और कुछ जो यहाँ पे एचके कैटेगरी होता है, बहुत सारे कैटेगरी 2A है, 2B है, तो वो सारे कैटेगरीज में जो है सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ये 4 जो पहले मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन लोग का जो इनटेक है मैनेजमेंट कोटा में, मैनेजमेंट और एनआरआई कैटेगरी में, वो काफी अच्छा इनटेक है। इसके बाद हम लोग रैंक करेंगे फ्रेंड्स एजे मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वेरी नाइस कॉलेज। ये मैंगलोर में लोकेटेड है, 2001 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था फ्रेंड्स, और इसका भी इनटेक काफी अच्छा है। जैसे कि अगर जनरल मेडिसिन की बात करें तो 7 सीट की इनटेक है, रेडियोलॉजी में 8 सीट की इनटेक है, काफी अच्छा इन लोग का भी इनटेक है। इसका फीस स्ट्रक्चर जो है मैनेजमेंट कोटा में हायर साइड पे रहता है, तो इवन इफ यू आर ऑन द लोअर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट, the probability is very very high कि you will get the allotment in AJIMS। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, काफी डिमांड में रहता है, मैंगलोर में है, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज वाले स्टेट्स हैं वहां के बच्चे बहुत ज्यादा इसको प्रीफर करते हैं, तो काफी डिमांड में रहता है। तो इसको हम लोग रैंक कर सकते हैं 5th पोजीशन पे फ्रेंड्स। 6th पोजीशन पे हम लोग रैंक करेंगे सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज कि इसका पेशेंट फ्लो बहुत ही एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो है, एंड द सेकंड मेन रीजन इसकी इनटेक। सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज के पास टोटल 32 जनरल मेडिसिन की इनटेक है। जस्ट इमेजिन 32 मेडिकल जनरल मेडिसिन है, 21 गायनेकोलॉजी है, 15 रेडियोलॉजी है, 18 ऑर्थो है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द इनटेक व्हिच दिस मेडिकल कॉलेज हैज। बहुत ही हैंडसम अमाउंट ऑफ इनटेक है, एंड द पेशेंट फ्लो इज द मेन यूएसपी ऑफ दिस कॉलेज। स्पेशली आपको अगर देखें तो रेडियोलॉजी और जनरल मेडिसिन और गायनेकोलॉजी, ये 3 डिपार्टमेंट्स में बहुत ही अच्छा इसका पेशेंट फ्लो है फ्रेंड्स। प्रॉपर हार्ट ऑफ द बैंगलोर में लोकेटेड है। ये भी एक प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन इन लोगों की काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो केईए ही रहती है। तो सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज भी डेफिनेटली आपके लिस्ट में रहना चाहिए। मैनेजमेंट कोटा में अगर हम लोग इसकी रेडियोलॉजी और मेडिसिन की बात करें तो जनरल मेडिसिन में मैनेजमेंट कोटा में इसके पास 12 सीट रहती है, रेडियोलॉजी में इसके पास 8 सीट रहती है, जनरल सर्जरी में 7 सीट रहती है। तो बहुत ही अच्छा इंटेक है, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में इन लोग का इंटेक काफी
काफी अच्छा है। तो अगर आप लोअर साइड ऑफ रैंक ब्रैकेट में हैं तो डेफिनेटली सप्तगिरी भी आपके लिस्ट में रहना चाहिए, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट गेटिंग द अलॉटमेंट इन दिस मेडिकल कॉलेज इज रियली हाई, वेरी हाई। बहुत ही इजीली आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको हायर फी स्ट्रक्चर में। अगर इसके हम लोग ओपन कैटेगरी की सीट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ओपन कैटेगरी की जो सीट्स होती है उसमें फीस जो है हायर साइड पे रहती है, बिकॉज ये स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। दैट इज द मेन रीजन कि इसकी जो फीस है वो हायर साइड पे थोड़ी सी रहती है फ्रेंड्स। देखिए ये जो 6 कॉलेजेस हैं ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ पेशेंट फ्लो। इसके बाद हम लोग रैंक कर सकते हैं फ्रेंड्स SSIMS दावणगेरे। एसएस मेडिकल कॉलेज दावणगेरे आपको JJM मेडिकल कॉलेज का ही सेकंड कैंपस है, JJM वालों का ही ये कॉलेज है। काफी अच्छा कॉलेज है, पेशेंट फ्लो अच्छा है। JJM जैसा तो पेशेंट फ्लो नहीं रह सकता है इसका, बिकॉज दोनों मेडिकल कॉलेज दावणगेरे में है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द पेशेंट इज बीन डाइवर्टेड टुवर्ड JJM, क्योंकि काफी पुराना कॉलेज है। लेकिन SSIMS में भी कॉलेज अच्छा है फ्रेंड्स, मैनेजमेंट काफी रोबोस्ट है, काफी सॉलिड मैनेजमेंट है और अच्छी यहाँ पे आपको एक क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। देखिए इसका इंटेक जो है वो उतना हायर साइड पे नहीं है, लेकिन कॉलेज इज गुड। दिस मेडिकल कॉलेज शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप BGS मेडिकल कॉलेज बैंगलोर को भी रख सकते हैं। BGS मेडिकल कॉलेज बैंगलोर प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है, पेशेंट फ्लो एवरेज कैटेगरी की है, तो BGS को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एक कॉलेज की और मैं डिस्कशन करना चाहूंगा फ्रेंड्स, आकाश मेडिकल कॉलेज। देखिए आकाश मेडिकल कॉलेज प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। वी आर डिस्कसिंग दिस मेडिकल कॉलेज, द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर आप लोअर साइड ऑफ परसेंटाइल ब्रैकेट पे हैं, रैंक आपका मान के चलिए कि 1,20,000 के ऊपर है, तो यहां पे क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि इनटेक इस कॉलेज का अच्छा है, काफी अच्छा है इसके पास इनटेक है। जनरल मेडिसिन में अराउंड 6 सीटें इसके पास अवेलेबल रहती हैं, रेडियोलॉजी में 5 सीट है। तो देखिए इनटेक इसका काफी अच्छा है। अगर इनटेक के हिसाब से जाएं तो देखिए बेसिक थंब रूल क्या बोलता है फ्रेंड्स कि इफ यू आर ऑन द हायर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट, देन यू शुड हैव बेसिकली देयर आर 2 थंब रूल्स। यू शुड टारगेट दोज मेडिकल कॉलेज whose intake is more, point number 1, and you should target those medical college whose fees is on the higher side. Then the probability of getting the allotment is much higher. तो आकाश मेडिकल कॉलेज के साथ ये एक एडवांटेज है फ्रेंड्स कि इसका इंटेक काफी ज्यादा है। पेशेंट फ्लो की बात करें तो फ्रेंड्स एवरेज पेशेंट फ्लो है, पेशेंट फ्लो में दिक्कत नहीं है, पेशेंट फ्लो ठीक ठाक है, इसको बिलो एवरेज नहीं कह सकते। ऐसा भी नहीं है कि देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ पेशेंट फ्लो को एवरेज से अबव एवरेज के कैटेगरी में आप रख सकते हैं। द मेन यूएसपी ऑफ दिस कॉलेज इज द इंटेक काफी अच्छा है इस मेडिकल कॉलेज का, तो आपको अलॉटमेंट मिलने में आसानी रहेगी फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका फॉर MDMS, दैट इज फॉर NEET PG 2025। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग NEET PG 2025 काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।